Hey everyone, welcome back to another video on the channel. My name is Sankalp Chauhan and I'm currently a third year computer science and engineering student at KIIT University. In this video, I'll be taking you along with me in an examination week so that you will also get a glimpse of how end semesters of engineering students at KIIT University look like. Today onwards, or this particular vlog will actually contain an entire week of examinations at KIIT University. I'm currently in my 5th semester, so we have around 5 to 6 subjects, and I'll be taking you along through entire journey of how these exams are. For all the people who say that engineering is easy, trust me, it's not. At least for the people who take it seriously. In those regards, I'll let you know, guys, ki what are the things that we are actually facing. What could be the possible studying techniques that we use generally in order to get better results. Okay, so currently I'm studying HPC. I mean, tomorrow we have our exam of HPC. HPC is basically high performance computing, and we have already taken up the timer and stuff. So this timer and stuff technique is actually quite helpful. ये हमारी मैम है, शी सुजाता स्वाइन मैम. शी इज़ अ वंडरफुल टीचर HPC की. तो इन्हीं की वीडियोस से अपन हेल्प ले रहे हैं. बाकी आई हैव माई नोट्स प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. So we just have to revise a lot of things, and hopefully today we will be covering a lot of things, and tomorrow it's going to be a great exam. All right, so in the concept of dynamic scheduling, which is a good concept though, we have two approaches to avoid it, which is the scoreboard and Tomaluso. So I've been trying to understand the scoreboard approach, and ma'am, since past around 13 minutes, I mean, we both are struggling, like ma'am as well as me, we both are struggling to find out and come down to common grounds on the basis of understanding of this entire topic. मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है because it's way too complex, way too complicated, and it's actually very baseless in nature. ठीक है. So in that scenario, what do we really do? We leave the topic. ठीक है. After all of this, we have another one last video to cover, that is the Tomaluso approach. ठीक है. ये और देखेंगे, इसको और देखेंगे, इसको देख के सो जाएंगे. ठीक है. एंड कल जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज इन दोनों टॉपिक को छोड़ के बाकी सब हमने कर रखा है. तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. अगर एक आध टॉपिक छूट जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील. चीयर्स. सो यार, दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड दैट इज़ कि अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है यार, तो यू जस्ट लीव दैट टॉपिक, राइट, एंड प्रिपेयर फॉर everything and anything else that is required in the subject, right? And it is completely all right because आपको marks लाने in the end, right? It completely depends on it, but also you have to be careful कि यार अगर आप कोई बहुत ज़्यादा important topic ना छोड़ दो. ठीक है. So that is again a very important thing to keep in mind. चाय अपनी रेडी है, टाइमर अपना रेडी है, नोट्स अपने रेडी हैं. लेट्स गो. आई डोंट नो कितनों को ऐसी हैबिट है, बट मेरी तो है कि लाइक थोड़े जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, स्पेशली एंड सेम्स में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरी वाले होते हैं, जिन्हें याद करना ज़रूरी होता है, ये सब जो होता है, मतलब उनके से इसको टेक्निकली या फिर ऐसे थोड़े फैंसी लैंग्वेज में इसको फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ फार्मूले वगैरह के सबके फ्लैश कार्ड बना रखे हैं ताकि ये लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आते हैं. इनफैक्ट बस वगैरह में रिवाइज़ करने के लिए, या फिर आप जब कम्यूट कर रहे होते हो रिवाइज़ करने के लिए. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम समटाइम्स इज़ दैट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यही फ्लैश कार्ड्स कब फर्रे में बदल जाते हैं, यू नेवर नो. ठीक है. बट थैंकफुली आई डो नॉट डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि भाई जितने टाइम में आप फर्रे बनाओगे उतने टाइम में अच्छा है कि उतने टाइम में आप पढ़ लो, एक आध कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, राइट. सो डोंट डू दीज थिंग्स. फ्लैश कार्ड्स ये फाइनली होते हैं पढ़ने के लिए. ठीक है. चीयर्स. एंड अभी बज रहे हैं 11:30 दिन के, एंड आज हमारा एग्ज़ाम है फाइनली HPC का. एंड 1 घंटा है हमारे पास करने के लिए, बट 1 घंटे में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े बहुत देख लेंगे और कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो देख लेंगे. एंड 1 बजे निकल जाएंगे यहाँ से. 2:30 पे एग्ज़ाम है. So let's see what happens. All right, so it's almost 12:45 and we'll be leaving very soon, and let's go for the exam. Comment में लिख दो all the best. ठीक है. Because I do not know कि क्या होगा क्या नहीं होगा, but let's hope for the best. यार एग्ज़ाम तो मेरा आज दूसरा दिन है. लाइक कल मेरा एग्ज़ाम था, काफ़ी टाइम हो गया, मैं खुद वीडियो बनाना भूल गया. इस बीच में काफ़ी कुछ हो गया. लाइक एग्ज़ाम तो अच्छा गया, लाइक ओवरऑल काफ़ी सही गया. आज संडे था तो सुबह एक मंदसौर की हम लोग की मीटिंग थी,
तो वो अटेंड करी। एंड मंदसौर में नए लोग ज्वाइन किए हैं, मैं भी एक नया रिक्रूट हूँ वहाँ पे। उसको निपटा के फिर मैं वापस आ गया। मेरा मन तो था लाइब्रेरी में पढ़ने का, बट वो हो नहीं पाया फॉर सम रीजंस। तो मैं आ गया हूँ। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी रात के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, ठीक है। 8 बजे से लेके अपन रात के पूरी रात देख लेंगे। मतलब इट्स अ बिग डेटा, लाइक इट्स बीडी है अगला पेपर मंडे को, ट्यूसडे को। तो ईजी है सब्जेक्ट, काफ़ी ईजी है एंड इट्स कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड। तो सब कुछ आपका मतलब केवल याद करने पे डिपेंड करता है। एंड थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है मेरा, वो निपटा लेंगे आज रात में। कल फिर हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वो रिवाइज करेंगे एंड विल बी ऑल सेट। यार तुम लोगों को सही बात बताऊँ ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। लाइक रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं दिन में भी सोया था मानता हूँ, बट मन नहीं कर रहा है। नॉट बिकॉज कुछ पढ़ा नहीं है और समथिंग लाइक दैट, बट बीडी में आता है मेरे को, ठीक है, लाइक आता है। बट द थिंग इज़ कि एक वो हल्का सा डाउट रहता है ना कि यार पता नहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, या पता नहीं कोई कुछ चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस ना चली जाए, राइट। तो बस उस चीज़ को, डाउट को कवर करने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ यार। और ऊपर से रिवीजन करना इतना डिफिकल्ट टास्क होता है ना। मतलब ठीक है, तुम नया टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम नई नई चीज़ों में फ्लो में निकल जाएगा, बट रिवीजन करना इतना गंदा लगता है ना भाई। मतलब जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट दिस, लाइक आई हैव इवन चेंज्ड माई प्लेस टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। लाइक ये सब मेरे को रिवाइज़ करना है अननेसेसरी भाई। मतलब अगर पढ़ना होता तो अलग बात थी, बट मेरे को ये रिवाइज़ करना है। वाई अपन करते हैं ख़त्म इसको, आधे पौन घंटे में ख़त्म करके सो जाएंगे। हम लोग आए थे 4 बजे पूरी। क्यों आए थे मम्मा? मेरी बन रही है पागल। क्यों आए थे? क्यों आए थे? मतलब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए थे। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत ही अजीब सा कैमरा एंगल है ये। ऑलराइट, सो हमारे एग्जाम्स जो है वो ओके, सो दिस कैमरा एंगल इज एक्चुअली वेरी वियर्ड एंड आज लाइक दूसरा दिन है जो हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं। कल ही एग्जाम्स खत्म हुए हैं। लाइक ओवरऑल जो दिस सेमेस्टर की ये वाला जो एंड सेम था वो लास्ट एंड सेम से काफी बेटर गया, बिकॉज इस बार हमने अच्छे से पढ़ के दिया था। ऑल्सो देयर वाज अ थिंग ऑफ एन एकेडमिक कमबैक दैट वी वर फोकसिंग ऑन सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस सेमेस्टर। सो उसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ये वाले एग्जाम्स गए हैं एंड कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि लाइक कम मार्क्स आने की या फिर किसी और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की। इसी के साथ करते खत्म इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। एंड एमयूएन रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी यार उसके बारे में कमेंट कर देना, वो भी आ जाएंगी, वो भी आ रही हैं, लाइक दे आर इन द पाइपलाइन एंड एवरीथिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। भाई साहब।